So last time around we had seen how to create bean with constructor, with setter, and we had done the scope of the bean, right? So this is the one which we are working on. So SRTM we have two packages, model and we have the resources file and we are configuring all our bean over here. Okay. So let's go beyond that. Okay. Next topic for today is how will we do DI using the beans. So if you remember our if you remember winter, winter main, what did we do in winter main? We first made beans of objects of engine manually by constructor, object of engine manually by setter, object of gear manually by constructor, object of gear by setter, and then what did we do over here? We are injecting the engine and the gear inside the car class using CDI. Okay, and what are we doing over here at line number 37, 38? We are injecting the engine and the gear inside the class using SDI. So let's do that now. So for that, so we have done, so far we have made beams of engine and gear by using constructor and by using setter. Now we'll try to make a model class by the name car. So let's copy this car over here, which we already have, and put it where in which package? Model. So let's come over here and we have the car class. So what does the car have? Manufacturer name, model, car price, car color, and it has two dependencies. Which are the two dependencies it has? Engine and gear. Okay. So we'll inject the engine and the gear from here. Okay, and this is the no args constructor, all args constructor. So we can use both the ways of injecting and we have the toString function also. Correct? So now let's try to make a bean of the car class using its yes guys, bean के बाहर, ये bean के बाहर, ये bean. Correct? So I'll just write this down over here so that I have all the data. Let's make a bean. Okay, for which ID should we give? ID let's give car1. Which class? Which class? form.itp.model. Make sense? सही है. And now I will make a object using what? Using, so this object I'll make. Yes or no? मुझे फिर इसकी जरूरत नहीं. तो क्या करेंगे बोलो? कंस्ट्रक्टर आर्ग और कैसे पास करते हैं इसको, ऊपर हमने लिखा है वैल्यू से, है ना? तो क्या लिखूंगा? वैल्यू इक्वल्स टू, बोलो भाई. मैन्युफैक्चरर का नाम पहले
फिर नेक्स्ट सिटी, फिर नेक्स्ट प्राइस 100 यूनिट्स और फिर कलर। ठीक है, ये सब प्रिमिटिव्स थे, ये सब क्या थे? प्रिमिटिव। तो डेटा टाइप दो ब्रॉड कैटेगरीज के क्या है? प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। वैल्यू टाइप क्या है? रेफरेंस टाइप क्या है? कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। तो कौन सा डेटा कॉल बाय वैल्यू पास होता है, कौन सा कॉल बाय रेफरेंस पास होता है? प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में बोलना। प्रिमिटिव इज पास बाय वैल्यू, नॉन प्रिमिटिव इज पास बाय रेफरेंस। यू ऑल नो दैट राइट डिफरेंस। सो ये प्रिमिटिव था, इसके लिए क्या यूज किया मैंने? वैल्यू वैल्यू। अब ये जो अगले दो है माई इंजन वन और गेयर वन, ये क्या है? नॉन प्रिमिटिव है। तो यहाँ से कोई ना कोई बीन आपको चूज करना है, फिर आपको इंजन की। तो मुझे ये बीन इंजेक्ट करनी है। यहाँ कौन सी बीन इंजेक्ट किया है? यहाँ जो बीन इंजेक्ट किया है माई इंजन वन। माई इंजन वन कौन सी है? पेट्रोल होंडा वाली। तो यहाँ कौन सी है वो पेट्रोल होंडा वाली? E1 है ना? तो फिर हम यहाँ पर बोलेंगे वैल्यू इक्वल्स टू क्या? बीन का नाम। करेक्ट? यस, पार्शियली करेक्ट। फुल्ली करेक्ट क्या होगा? E1 प्रिमिटिव का नॉन प्रिमिटिव है? नॉन प्रिमिटिव कैसे आ रहा है? वैल्यू का रेफरेंस। तो फिर यहाँ पर क्या होगा? इस बीन का रेफरेंस चाहिए। समझ में आ रहा है? और दूसरा गियर वन। गियर वन कौन सा है? गियर वन है 6 लीवर वाला मैन्युअल टाटा गियर। वो कौन सा है हमारे पास इधर? कौन सा है? G1 है। तो फिर क्या करूँ? रेफरेंस क्या वैल्यू हो गया? डिपेंडेंसी इंजेक्ट। ये निकाल दो लाइन। So now whenever I want a car, all I'll do is whenever I want a car, my task will be, ये हो गया था ना उस दिन। ठीक है, तो मैं अभी इसको रख रहा हूँ ताकि ये खराब ना हो, ओवर राइटिंग ना हो और लेंदी ना हो। इसके लिए मैं तुम लोग के लिए अलग अलग ड्राइवर बना रहा हूँ। ठीक है, ड्राइवर ऐप 2। ठीक है ना? तो इसमें हम लोग क्या डाल रहे हैं अभी? फॉर कार DI, कार जो बनाया अपन ने उसके डिपेंडेंट के लिए अलग से बना दिया। ठीक है, ताकि हम लोग एक फाइल को लंबी भी नहीं करेंगे और आपको जो मैं पुश करूँ कोड को गिटहब पे तो आपके पास सारा कोड आ जाए। तो ये बना लेंगे। ठीक है, लोड हो गया। अब सिर्फ क्या बोलूँ मैं? इसका आप कुछ भी चाहो तो नाम दे सकते हो। ठीक है ना? इसका आपको जो भी नाम देना है, मैंने बीन फैक्ट्री रखा है। आपके ऊपर है कि आपको क्या रखना है, आपको B1 रखना है या जो भी XYZ, बट लेट्स स्टिक टू दैट बीन फैक्ट्री, क्योंकि फैक्ट्री से ले रहा हूँ इसलिए मैंने ये नाम रखा है। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नाम नहीं है। क्या बोलेंगे इसको? गेट मी अ बीन। ठीक है, तो वो पूछेगा कौन से बीन चाहिए आपको। मैं बोलूँगा कार1। वो कौन से क्लास की है? कार डॉट क्लास की है। उसके लिए फिर हम रेफरेंस ले लेंगे कार क्लास का। माई कार1 इक्वल्स टू कंट्रोल शिफ्ट ओ कर लेंगे, जो अलग पैकेज में से इंपोर्ट हो जाएगी। और फिर मैं सिस्ट आउट कर दूंगा क्या? माई कार1। ठीक है, अब मैंने कार क्लास भी बना दी, प्रिमिटिव्स भी इंजेक्ट कर दिए, नॉन प्रिमिटिव्स भी इंजेक्ट कर दिए। एक न्यू कीवर्ड यूज किया नहीं है। सारा का सारा IOC कंटेनर मैनेज कर रहा है। मुझे कुछ मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखो आपको आपकी वो कार मिल गई जो आपको चाहिए थी। होंडा सिटी 100 यूनिट वाली वाइट कलर की, 15 लीटर 1500 सीसी वाला इंजन, पेट्रोल, और ये गियर आ गया। Does that make sense to you?
Now, what if I would have made the car using stator? पॉसिबिलिटी है ना? इस तरह मुझे एक कार, जैसे अपन ने नेक्स्ट वाली कार बनाई थी, ये वाली कार, ये हमने किससे बनाई थी? स्टेटर से बनाई थी। तो वही चीज हम यहाँ भी रेप्लिकेट कर सकते हैं। ठीक है, बीन का आईडी चेंज कर दो, टू कर दो। अब स्टेटर में क्या होता था? प्रॉपर्टी होती थी, है ना? प्रॉपर्टी में क्या होता था? अभी प्रॉपर्टी में होता था वैल्यू, है ना? प्रॉपर्टी में होता था वैल्यू। कंट्रोल शिफ्ट एफ से फॉर्मेट कर दो। प्रॉपर्टी बॉम्ब क्यों मार रही है? हाँ, ओके, प्रॉपर्टी पास करनी पड़ेगी। कौन सी प्रॉपर्टी? क्या था उसका नेम ना? यहाँ पर आपको उसका नेम पास करना पड़ेगा। अब फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कार क्लास के सारे एट्रीब्यूट्स को यहाँ से उठाने पड़ेंगे। करेक्ट। और हम कौन से बना रहे हैं? अभी हम बना रहे हैं ये वाली, हम बना रहे हैं ये वाली कार। तो पहला प्रॉपर्टी कौन सा है? पहला प्रॉपर्टी है कार फीचर नेम, उसका वैल्यू क्या है? सही है, तो बस प्रॉपर्टी ले लिया। दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है? इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, आप कुछ भी ऑर्डर ले सकते हैं। कार मॉडल, वो कौन सी है? अच्छा, तीसरा कौन सा है? कार प्राइस, वो कितनी है? 200 यूनिट। ठीक है, ये भी होगा खाली। नेक्स्ट क्या है? ये आपको बहुत केयरफुली लेना है। कार कलर, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो जाए। क्या है? अब जो दो प्रॉपर्टी बचे वो क्या है? बचे प्रॉपर्टी कौन से है वो? आईटीपी इंजन और आईटीपी गेयर। तो ये कैसे पास होंगे फिर? अभी प्रिमिटिव का नॉन प्रिमिटिव, रेफरेंस क्या वैल्यू? तो यहाँ देखो मैं लिखा है, देखो आपको सिर्फ नेम के साथ ही दे देना है। प्रॉपर्टी नेम इंजन, वैल्यू बनाने की जरूरत नहीं है। नेम इंजन है और क्या रेफरेंस है उसका, आपको ई टू इंजन यूज करना है, यहाँ पर वैल्यू देने की जरूरत नहीं। ठीक है, रेफरेंस आप ऐसे डायरेक्ट पास कर सकते हैं, एक लाइन में रेफरेंस पास कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या रेफरेंस पास करना है आपको? जी, वैल्यू देने की जरूरत नहीं है ना, ये देने की। समझ में आया? हाउ टू पास द रेफरेंस। सेव किया। कौन सी कार है मेरी? ये कार 2 है। अब मैं बोलता हूँ सिर्फ कार 2 चाहिए मेरे को। यहाँ आके सिर्फ इंस्ट्रक्शन देना है, राइट क्लिक रन एज जावा एप्लीकेशन, और आपको आपकी ये क्या होता है इधर, इधर इधर देखो रेड कलर का उसका इशू है, यहाँ पर सब इशू आया है, इसके लिए ये इशू सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। क्या हो गया? हाँ, सेव किया ना अभी? ओके, ये ऊपर कचरा, कचरा को निकाला नहीं। ठीक है, अभी ये इधर आ गया।
सब साफ प्लेट साफ करने का हमेशा और ऑन करके देखते हैं। ये भी मिल गया आपको, ठीक है, ब्लैक कलर की 25 लीटर की डीजल इंजन की टोयोटा इनोवा। कोई शक? यस, नो। नाउ लेट्स डिस्कस वन ऑफ द वेरी मोस्ट important attribute of a bean called as what? Auto wire. अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही समझने वाला चीज है। ऑटो वायर क्या होता है? तो एक बीन में हम जब डिपेंडेंसी इंजेक्ट कर रहे हैं तो दो चीजें इंजेक्ट करते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। तो ठीक है, व्हेन यू इंजेक्ट द डिपेंडेंसी we inject the primitives as well as स्ट्रिंग कैसे जा रहा है? स्ट्रिंग, हाँ, तो ये के लिए स्ट्रिंग जो है वो क्या है, ये एक डिबेट बड़ा है। तो उसको लोग प्रिमिटिव में ही गिनते हैं कुछ लोग, और नॉन प्रिमिटिव डिपेंडेंसीज भी है। प्रिमिटिव कैसे जाते हैं? बाय वैल्यू, क्योंकि कॉल बाय वैल्यू है प्रिमिटिव, रेफरेंस टाइप वैल्यू टाइप है, और नॉन प्रिमिटिव क्या है? बाय रेफरेंस, क्योंकि वो रेफरेंस टाइप है। सही है, ये हमने डे 1 से यही पढ़ा है। इसके लिए डेटा टाइप्स इन जावा क्वेश्चन को अच्छे से समझ के, अगर एग्जाम में पूछा जाए इंटरव्यू के अंदर, तो इस पे आपका डिस्कशन होना चाहिए, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव और बाय वैल्यू और बाय रेफरेंस कीवर्ड आना चाहिए आपके आंसर के अंदर। तो नॉट डायरेक्टली स्टार्ट विद डेटा टाइप्स इन जावा इंटीजर कैरेक्टर फ्लोट। अगर डायरेक्टली 30,000 फुट से 1000 पे आ जा रहे, 30,000 से 25, 25 से 30 ग्लाइड करके आना है इंटरव्यू के अंदर, तो पहले सबसे ऊपर वाला बताना है, फिर नीचे 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 आना है। तो ये समझ में आ गया। अब जब भी मुझे नॉन प्रिमिटिव पास करना पड़ रहा है, हम कौन सा एट्रीब्यूट अभी डिस्कस कर रहे हैं? कौन सा एट्रीब्यूट पढ़ रहे हैं? बीन का ऑटो वायर। बीन का अपने आईडी पढ़ा, क्लास पढ़ा, स्कोप पढ़ा, अब चौथा एट्रीब्यूट क्या है? ऑटो वायर। अब ये ऑटो वायर समझने के लिए आपको नॉन प्रिमिटिव समझना जरूरी है, क्योंकि ऑटो वायर सिर्फ नॉन प्रिमिटिव से काम करता है। क्या बोलता है? ऑटो वायर वर्क ओनली ऑन the non-primitive dependency। ऑटो वायर से किस पे काम करेगा? नॉन प्रिमिटिव से काम करेगा, ठीक है। तो इफ आई सेंड लेट्स से आदित्य and I give him 20 rupees and I tell him कि go get me a water bottle, तो and if I tell him कि भाई बिस्लरी का लाना, तो उसको लगता रहेगा कि सर को शायद कोई स्पेसिफिक ब्रांड का पानी पीना पसंद होगा, सर को एलर्जी होगी बाकी पानियों से, तो वो जाएगा और बिस्लरी का ही लेके आएगा और वापस आ जाएगा, सर बिस्लरी नहीं मिला तो मैं आपके पैसे वापस लेके आ गया, बिकॉज मैंने एक बार डिसीजन नहीं लिया कि किनले का भी ले लूँ क्या मैं, क्या पता आपको शायद वो सूट नहीं होता होगा, इसके लिए आपने नाम लेके बोला कि बिस्लरी का, ठीक है। नेक्स्ट आई गिव 20 रुपीज टू शिवम and I tell him go get me a water bottle, मिनरल वाटर लेके आना। अब नाम दिया क्या मैंने, तो शिवम वहाँ जाएगा, देखेगा कि कौन सी अवेलेबल है, वहाँ से एक उठा के लेके आ जाएगा, तो सर आपने पानी की बोतल मंगाई थी, ठीक है ना। तो ऐसे ही ऑटो वायर काम करता है। अब यहाँ पर जब मुझे ऑटो वायर किस पे काम करता है? सिर्फ नॉन प्रिमिटिव। अब जब मुझे यहाँ पर इसमें नॉन प्रिमिटिव की जरूरत थी, मैं बोल रहा था कौन सी बीन चाहिए मेरे को? E1 चाहिए। क्या चाहिए? तो वो E1 ही ला के देगा मुझे। क्या ला के देगा? E1, ठीक है। और वो E1 किस टाइप की होना चाहिए? इंजन टाइप की, क्योंकि इसका कंस्ट्रक्टर क्या बोल रहा है? कार क्लास के कंस्ट्रक्टर का फिफ्थ आर्ग्यूमेंट क्या है? 1 2 3 4 5, वो क्या है? इंजन। कौन सा इंजन? com.itp.model.engine, उसी पैकेज में ना। तो वो बोलेगा एकदम स्पेसिफिक बोलेगा, मेरे को E1 चाहिए। आई कैन मीन एनी वन ना, आई कैन मेक दिस विराट कोहली बिन ऑल्सो E1, कोई प्रॉब्लम?
अगर मैं ऊपर वाली बीन को कुछ नाम अलग दे दूँ, एप्पल दे दूँ, बीन का एप्पल, और विराट कोहली वाली बीन को E1 कर दूँ, कोई प्रॉब्लम? फिर भी यूनिकनेस मेंटेन है ना। और वो जाके चेक करेगा कि भाई क्या बोला है, E1 बोला है, तो वो बोलेगा नाम भी होना चाहिए क्या, E1, और क्लास भी होना चाहिए com.itp.model.engine। तो वो ढूंढेगा पूरे बीन के अंदर, वही चाहिए बस, तो मिलेगी उसको। हाँ मिल जाएगी सर, आपकी बीन मिल गई, और वही की वही बीन लाके वो इंजेक्ट कर देगा। ठीक है, क्योंकि वो बहुत प्रिसाइसली बोल रहा है कि मुझे इस क्लास का ये वाला बीन चाहिए। यहाँ पर भी जब अपन ने प्रॉपर्टी से सेट किया, मैंने प्रॉपर्टी से कार बनाया, जब प्रॉपर्टी से, तो उसने क्या बोला मुझे क्या चाहिए, E2। तो वो सर्च करेगा कोई इंजन जिसका आईडी क्या हो और उसका क्लास क्या हो, com.itp.model.engine। तो वो ढूंढेगा और उसको एक बीन मिल जाएगी जिसका नाम E2 है और क्लास भी वही है, उसको इंजेक्ट कर देगा। सही है, सो फार सो गुड। ऑटो वायर क्या करता है, थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे आता है, क्या करता है, ठीक है। ऑटो वायर क्या करता है कि हम जो मैंने अभी ये बनाया कार 3, क्या बनाया मैंने, वो क्या बोलता है, आई विल नॉट टेल यू विच नॉन प्रिमिटिव टू गेट, आई विल जस्ट टेल यू ऑटो वायर, आई टेल यू व्हाट, ऑटो वायर। अब ऑटो वायर के दो मेन है, आई विल टेल यू ऑटो वायर मतलब जो तुझे नॉन प्रिमिटिव मिले तू ले ले तेरे हिसाब से, पानी की बोतल ला के दे, अब तुझे जो वहां से डिस्टेंस से वो लेना है तो मुझे पानी की बोतल ला दे, बस होना चाहिए पानी की बोतल। सर ये 20 रुपए की मैंने फ्रूटी ला के दे दिया, तो मुझे फ्रूटी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, पर मैंने ब्रांड आपको बोला है क्या, वो आप खुद और डिसीजन ले सकते हो। तो ऑटो वायर क्या करता है, दो टाइप में आता है, ठीक है। एक आता है बाय टाइप और एक आता है बाय नेम, ठीक है। अब बाय टाइप में क्या बोला है, बाय डिफॉल्ट अगर अपन क्या करेंगे, बाय टाइप यूज कर लेंगे। अब मैं जब ये ऑटो वायर कर रहा हूँ, ठीक है, ऑटो वायर कर दिया, इक्वल टू दे दिया, गिव अ कंट्रोल स्पेस बार, आपको ऑप्शन देगा वो। तो मैंने क्या ले लिया, क्या ले लिया मैंने, बाय टाइप। अब वो डिसीजन मेकिंग छोड़ देगा आईओसी कंटेनर के ऊपर कि भाई मेरे पास ऐसा कंस्ट्रक्टर है जिसको 6 आर्ग्यूमेंट चाहिए, 4 तो मैंने पास कर दिए, अब 2 क्या बचे, नॉन प्रिमिटिव। वो नॉन प्रिमिटिव किसके हैं, engine के, और com.itp.model.engine और com.itp.model.gear। तू डिसीजन ले ले और तू उसमें से इंजेक्ट करके मुझे दे दे। अब आईओसी कंटेनर को दे दिया डिसीजन मेकिंग, अब आईओसी कंटेनर तलाश में निकला उस बीन के। अब आईओसी कंटेनर हो गया कंफ्यूज, क्या हो गया कि सर आपने मुझे डिसीजन मेकिंग के लिए दिया है बट मुझे दो दो बीन दिख रहे हैं इंजन के, ये E1 भी com.itp.model का इंजन है और E2 भी com.itp.model का इंजन है। तो अभी ये हो जाएगा कंफ्यूज कि मांगा है एक और ऑप्शन है 2, और ये एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। तो अपन ने क्या बोला है उसको, गियर के लिए भी, गियर के लिए भी बोल दिया उसको अपन ने, क्या क्या बोल दिया अपने, ऑटो वायर बाय टाइप। तो 6th आर्ग्यूमेंट क्या था, गियर। तो तलाश में निकलेगा com.itp.model.gear का कोई बीन मिलता है क्या, पर उसको मिल जाएंगे 2 बीन, G2 भी मिल जाएगा, और तो ये आ जाएगा एक्सेप्शन कि रिक्वायर्ड 1 बट आई हैव 2 एलिजिबल कैंडिडेट, और वो एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। सेव करते हैं, ठीक है। और अभी कौन सा वाला, किस पे क्या बोले इसको, कार 1 पे, कार 2 पे, कार 3 पे किया है क्या, तो लेट्स ट्राई टू गो हियर, ठीक है। अब मैं वापस इसका एक और ड्राइवर ऐप बना रहा हूँ, ड्राइवर ऐप फॉर ऑटो वायर, ताकि ये सारी फाइल्स आपको मिल जाए। कौन सा कार का बना रहा हूँ मैं,
कार, ठीक है। तो क्या इशू आएगा अभी इधर, एक्सेप्शन, क्या बोल के कि मुझे चाहिए इंजेक्ट करना एक इंजन पर मुझे ऑप्शन कितने मिल रहे हैं, दो मिल रहे हैं। मुझे करना है इंजेक्ट एक गियर, मुझे ऑप्शन कितने मिल रहे हैं, दो मिल रहे हैं, ठीक है। आई ऑलवेज मेक अ पॉइंट टू क्लियर द स्लेट व्हेनेवर आई डू अ न्यू रन, ताकि नए रन के नए एरर्स मिले, वरना वो पुराने एरर्स को कॉन्कैट करके दिखा देगा, मालूम नहीं पड़ेगा कि अपने एरर कौन से हैं और पुराने वाले एरर कौन से हैं। अभी नक्की एक्सेप्शन हो रहा है, ठीक है। इसको पढ़ने का सिंपल रास्ता है, उस जहाँ से एक्सेप्शन या एरर थ्रो हो रहा है उसके फर्स्ट लाइन को पूरा पढ़ना, आपका 99.9% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। या उस लाइन को उठाकर डालो चैट जीपीटी पे या गूगल पे, फर्स्ट लाइन, तो ये एरर आ रहा है फर्स्ट लाइन पे, इधर एक्सेप्शन आया, ठीक है। अनसैटिस्फाइड डिपेंडेंसी एक्सेप्शन क्या आया, क्योंकि कार को डिपेंडेंसी थी किसकी, इंजन की, सेटिस्फाई हुई क्या, क्यों सेटिस्फाई नहीं हुई, क्योंकि मैंने उसको बोला था कि भाई तू तू अपने हिसाब से ले लेना, और वो अभी डिसीजन नहीं ले पा रहा है। अभी देखो ये पढ़ लो, एरर को पूरा पढ़ लो, क्या बोल रहा है, एरर क्रिएटिंग द बीन कार 3 डिपेंड इन द क्लास पाथ ब्ला ब्ला ब्ला, अनसैटिस्फाइड डिपेंड थ्रू कंस्ट्रक्टर पैरामीटर 4 एम्बिगुअस पैरामीटर, डिड यू स्पेसिफाई द करेक्ट। तो वो क्या बोल रहा है, मुझे चार पैरामीटर वाला बीन, चार पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर नहीं मिला मुझे, क्या बोल रहा है वो, चार पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर नहीं मिला, तो ये इसका इशू क्रिएट कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका इलाज करने के लिए, इसका इलाज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो अभी उसने आपको बोला कि दो है, मैंने बोला था पानी की बोतल लेके आओ, नाम दिया नहीं, आप उधर गए, उसको बोला बिस्लरी भी है किनले भी है, और उसने क्या बोला ये बिस्लरी का पानी इसका वैलिडिटी खत्म हो गया है, या ये बॉटल में पंचर है, तो वो बॉटल लेगा तो ऑप्शन क्या बचता है अभी, आप कोई प्रॉब्लम डिसीजन मेकिंग में, आपको इश्यू नहीं है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं इसमें, एक बीन को क्या बोल देते हैं, E1 को क्या बोल देते हैं, भाई तू ऑटो वायर में पार्टिसिपेट मत कर, जब भी ऑटो वायरिंग की बात आएगी तो तू अपने आप को प्रेजेंट मत कर, तो क्या बोलेंगे उसको, ऑटो वायर कैंडिडेट फॉल्स, क्या बोलेंगे, ऑटो वायर कैंडिडेट क्या बोलेंगे इसको, इक्वल टू कंट्रोल स्पेस बार, और क्या बोल देंगे इसको, ऑटो वायर कैंडिडेट फॉल्स। तो अभी E1 कभी भी ऑटो वायरिंग में पार्टिसिपेट, तो अब ऑप्शन क्या बचता है, E2। ऐसे ही G1 को बोल देते ऑटो वायर कैंडिडेट, अब तो भी क्या, ये भी क्या करेगा, अभी ऑटो वायरिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। ओके, अब ये, हाँ, अब देखो इधर, यहाँ पर एक चीज समझना है, ठीक है, शायद मेरे यहाँ भी लिखा होगा मैंने शायद इसके अंदर, ऑटो वायर के अंदर, देखो, while using auto wire in constructor argument we have to make a separate constructor in the entity class with only the primitive, with only the, देखो अभी हमारा ये जो समझो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, यहाँ पर जो हम कार 3 बना रहे हैं, कितने पैरामीटर्स पास कर रहे हैं उसको, तो ऐसा भी एक क्योंकि फिर वो इससे ऑब्जेक्ट बनाएगा ना, और फिर ऑटो वायर कर लेगा बाकी दोनों चीजों को, तो एक चाहिए ना कंस्ट्रक्टर जो ये चार चीजें हो शुरू में बना के दे, तो इसके लिए क्या करो, कार क्लास में जाओ और क्या करो, ऐसा भी एक कंस्ट्रक्टर होना चाहिए जो क्या ले, ये चार चीजें, ठीक है। तो वो इससे ऑब्जेक्ट बना देगा, बचेगा क्या, इंजन और कार को क्या कर देगा वो, ऑटो वायर कर देगा, ठीक है। तो ये सेव कर दिया मैंने, ओके। अब जो है इधर आ गए, ये प्रिमिटिव तो इंजेक्ट हो गए, बचे क्या अभी, नॉन प्रिमिटिव। तो लेट्स अभी मैं ये ऑटो वायर कैंडिडेट इसका निकाल देता हूँ, किसका, किसका, गियर का। तो इंजन के इसके बाद कितने ऑप्शन है अभी,
एक, क्योंकि इसने तो बैकआउट कर दिया है। गियर के क्या ऑप्शन है? दो। अभी क्या आएगा? एक्सेप्शन आएगा, अनसैटिस्फाइड डिपेंडेंसी। क्यों? क्या बोल के? मुझे चाहिए एक गियर पर मुझे मिल रही इधर दो, मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ। तो ये हुआ है। अभी देखो स्लेट साफ कर रहा हूँ मैं, वापस आ रहा हूँ इधर। तो एरर पढ़ लोगे आप, आपको समझ में आ जाएगा क्या है। आ गया? एक्सपांड करो। और क्या बोल रहा है? एरर क्रिएटिंग बीन विद, और कोई आया अनसैटिस्फाइड डिपेंडेंसी। अब क्या आया देख लो। इन क्लास पाथ ब्ला 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 अनसैटिस्फाइड डिपेंडेंसी थ्रू आईटीपी गेयर नेस्टेड एक्सेप्शन। ठीक है, नो क्वालिफाइंग बीन और गेयर, मुझे कोई गेयर के लिए बीन डालने को नहीं मिल रहा है। क्यों? अवेलेबल एक्सपेक्टेड सिंगल मैचिंग बीन बट फाउंड टू, है ना? सिंपल एज दैट। क्या बोल रहा है वो? E1 ने तो बोल दिया कि भाई E1 को बस कंसिडर करो, क्योंकि उसने ऑटोवायर अपने आप को ऑटोवायर कैंडिडेट को डिक्लेयर ही नहीं कर रहे हैं। बट G1 में अभी इशू आ रहा है कि मुझे दो गियर दिख रहे पर मुझे डालना है कि गियर है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? कोई ना कोई एक गियर में क्या करना चाहिए? बैकआउट करना चाहिए। तो लेट से G2 बोलता है चलो भाई पार्टिसिपेट नहीं करता हूँ ऑटो वायरिंग में। तो क्या बोल देगा ये ऑटो कैंडिडेट? बाय डिफॉल्ट ऑटो वायर कैंडिडेट ट्रू होता है। अगर बाय डिफॉल्ट होता फॉल्स तो एरर नहीं आता। ठीक है, तो अभी सेव किया। अब इशू नॉट होता, अभी एक ही गियर है उसके पास और एक ही इंजन में चूज करना है उसको, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी ये इशू निकल जाएगा। जो प्लेट को साफ कर दो पहले, राइट क्लिक कर दो, रन एज जावा एप्लीकेशन, और अभी वो मैटर सॉल्व हो। सही है। 25 लीटर वाला इंजन इंजेक्ट किया है, तो किसने अपने आप को बैकआउट किया था? E1। 15 लीटर वाले ने बैकआउट किया था, तो उसको इंजेक्ट नहीं किया। बचा क्या फिर? 25 लीटर वाले ने उसको डाल दिया। और कौन से गियर ने बैकआउट किया था? 8 लीवर वाले ने। तो उसने कौन से लीवर वाले गियर डाल दिया होगा? 6 लीवर वाला गियर डाल दिया ना, 6 मैनुअल टाटा, है ना? चेक कर लो, 6 मैनुअल टाटा। समझ में आ गया? ऑटो वायर और ऑटो वायर कैंडिडेट समझ में आ गया? ये था ऑटो वायर बाय टाइप। वो बोलता है इस क्लास का जो भी तुझे बीन मिल जाए उसमें से इंजेक्ट कर दे। तो अगर एक ही बीन मिलता है तो उसका काम आसान हो जाता है। मल्टीपल बीन मिलता है तो काम मुश्किल हो जाता है, फिर अपने को उसको सॉल्व करना पड़ता है डेडलॉक। एक चीज तो अगर 4 बीन है इंजन 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 के, तो 3 को क्या करना पड़ेगा? ऑटोवायर कैंडिडेट फॉल्स, एक को छोड़ देने का, तो उसको इंजेक्ट कर देगा। ठीक है, अगर 15 बीन होते तो 14 को मुझे क्या करना पड़ता था? ऑटोवायर कैंडिडेट फॉल्स। अब 14 को ऑटोवायर कैंडिडेट फॉल्स करना आसान है क्या? जो एक है जिसको मुझे चाहिए उसका नाम देना आसान है, तो वो है बाय नेम। वो क्या है? बाय नेम। तो ये क्या बोलता है फिर? अभी वालों में क्या, समझो इसको। अब मैं दोनों के ऑटोवायर कैंडिडेट निकाल रहा हूँ। ठीक है, दोनों के ऑटोवायर कैंडिडेट फॉल्स, तो ये भी एलिजिबल है और ये भी एलिजिबल है। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? यस और नो? नो प्रॉब्लम। अब मुझे चाहिए E1 और E2। क्या चाहिए मुझे? E1 और G1 क्या चाहिए मुझे? E1 G1 चाहिए। तो मैं क्या करूंगा अभी? इसको बोल दूंगा कार को कि ऑटो वायर किससे करे? बाय कंट्रोल स्पेस बार बाय। ठीक है, तो वो क्या करेगा फिर? इसमें क्या करना है अपने को? जो अपनी कार क्लास है वहां पर हमने जो नाम दिया है बीन भी इसी नाम से होना, बीन भी इसी नाम से होना। तो कोई जो आपको बीन इंजेक्ट करना है इंजन से, उस बीन का नाम भी ये होगा। तो E1 का नाम फिर मुझे रखना पड़ेगा। तो वो तलाश करेगा ऐसा बीन जो कॉम डॉट ITP डॉट मॉडल डॉट इंजन का हो और जिसका नाम क्या हो? एक नाम बाय नेम सर्च कर रहा है, बाय टाइप सर्च नहीं कर रहा है। ठीक है, और गियर को क्या करना पड़ेगा फिर मुझे? ITP गियर। बात समझ में आ रही है?
तो देखो ये E2 है, G2 है, ठीक है। और अपन ने कहा तो नीचे, फिर नीचे भी और यूज किया था ना अपन ने, तो यहाँ पर अपन ने E1 G1 यूज किया था ना, इसको E2 G2 कर देंगे ताकि इशू ना आए। अब उसे E1 G1 को चेंज किए ना, तो फिर यहाँ पर इशू आता था अपने को, तो इसको मैंने E2 G2 कर दिया, यहाँ पर भी E2 G2 कर दिया, ठीक है। अब जब कार 3 बनेगी तो ये 4 आर्क्स वाला कंस्ट्रक्टर प्रिमिटिव्स को इंजेक्ट कर देगा। नॉन प्रिमिटिव्स के लिए क्या बोला है मैंने, ऑटो वायर बाय नेम, तो वो जाएगा और सर्च करेगा इसमें नॉन प्रिमिटिव्स कौन से कार क्लास में, वो ये दोनों है। और बाय नेम मतलब ऐसी बीन जो इस क्लास की हो और इस आईडी की हो, इस क्लास की हो इस आईडी की हो, ये इसी पैकेज में है। तो ऐसी बीन जो com.itp.model.engine की हो, इसका आईडी क्या हो, ऐसी बीन जो com.itp.model.gear की हो, उसका आईडी क्या हो, इंजन। अब 15 में से कोई एक ही होगी ना, क्योंकि आईडी तो रिपीट होता नहीं, तो इसके लिए फिर वो काम इजी हो जाता है। तो अब मुझे बाकी 14 को ऑटो वायर पॉज करने की जरूरत नहीं है, जो इंजेक्ट करना है उसको उसका नाम दे देना, ठीक है। सेव करते हैं, कंसोल को क्लियर करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, रन एज करते हैं। यहाँ से रन एज नहीं करने का, ड्राइवर से, कहाँ से, ड्राइवर से। तो ये कौन से डालेगा, ये कौन से इंजन और गियर डालेगा, ये डालेगा 1500 सीसी वाली पेट्रोल होंडा इंजन और 6 लीवर वाला मैनुअल टाटा गियर, ठीक है। ठीक है, देखो 1500 सीसी वाली पेट्रोल टाटा इंजन, पेट्रोल होंडा इंजन और 6 लीवर वाला टोटल, इसको बोलते हैं ऑटो वायर बाय टाइप। तो ऑटो वायर में क्या होता है कि आपको नॉन प्रिमिटिव की बाय रेफरेंस टाइप का आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आईओसी कंटेनर का काम है डिपेंडेंसी इंजेक्ट करके आपको देना। समझ में आ रहा है, तो अभी आपको मैन्युअली भी लिखने की जरूरत नहीं। दिस इज हाउ इंटरनली द आईओसी कंटेनर वर्क। मेक सेंस? एनीबडी स्ट्रगलिंग, नॉट एबल टू रैप?